जो अभी की मार्केट है, स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हेन इट कम्स टू ब्लॉकचेन। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना कि एक चीज़ चलती है, जैसे डेटा साइंस है। व्हेन आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग, तो उस टाइम पे डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट वाला बूम आया, सब लोग आर लैंग्वेज कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट वोंट लैंड यू अ जॉब। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे if somebody is looking out at blockchain as a field of study, so how do you see, is it something that is really good, and if yes, why? At the same time, blockchain में there are like n number of opportunities apart from job. So when we talk about building projects in college, we have so many technologies that come into picture. Full stack development हो सकता है, Android development हो सकता है, blockchain हो सकता है. So what should you exactly pick up? And blockchain के questions मेरे पास बहुत सारे आते रहते हैं, and I have somebody with me today with whom we are going to talk about blockchain in general, careers in blockchain, and is it a right field for you? So I have with me Bandhul Bansal. He's the founder of Cruisephere's ICP India Hub, and इनसे हम बात कर रहे होंगे regarding this entire field. So सबसे पहले welcome to the podcast, Bandhul. Would like to have a brief introduction of yours. Thank you, Ash, for inviting me. It's great pleasure to be on your podcast. So, brief introduction, yeah. Where do I start? So, I started my entrepreneurial journey back in 2014 in first year of my college, and by the end of first of my college, and it was the custom B2B apparel business, right, where we used to create merch like t-shirts and hoodies for various corporates, colleges, universities. We worked with almost all the universities in DU, IITs, NITs. Companies में अगर आप देखो तो JP Morgan, ICICI Bank and L'Oreal, everyone was a client. By 2019 we were the second largest company. In this journey of entrepreneurship, so we had free cash, so I used to do trading, like stock market trading and everything, right? Being baniya, right? So this clicks me. So I used to trade this money in stock markets, right? Intraday and futures, options and all of this. तो मेरे को 2016 में I got introduced to Bitcoin. Since I was trader myself, और मेरे को था कि यार ठीक है, this is a high beta asset, already इतना fluctuate करता है. It can be a good market to enter, right, on the trading or investment perspective. But then I read the Bitcoin Standard, which is a great read anyways, and I understood कि अच्छा यार इसका importance क्या है and why this is important, why Bitcoin is important, right? And I became investor in Bitcoin and I bought Bitcoin. फिर उसको ट्रेड कर लिया 2017 की बुल मार्केट में. आई लॉस्ट इट ऑल इन बेयर मार्केट ऑफ 2018, बट आई लर्नड अ लॉट. इन 2019 आई वांटेड टू शेयर दैट लर्निंग विद द पीपल. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड अ एडटेक कंपनी कॉल्ड FinStreet. Okay. तो FinStreet हुई, तो उसके बाद 2020 लॉकडाउन हुआ एंड वी सॉ लाइक द बिग बुल मार्केट ऑफ 2021. तो 2021 में दो चीज़ें हुई. एक तो Web3 की बुल मार्केट आ गई, बिटकॉइन की है ना, इन टोटलिटी बुल मार्केट आ गई. एट द सेम टाइम एडटेक की बुल मार्केट आ गई. एंड माई आइडिया वॉज, जिसमें मैं ऑलरेडी काम कर रहा था 3 सालों से, वॉज एडटेक इन Web3. एंड इट गॉट एक्वायर्ड बाय बंच ऑफ HNIs एंड आई गॉट गुड एग्जिट एंड आई वॉज हैप्पी अबाउट इट. एंड देन उसके मुझे लगा कि एक छोटा करियर ब्रेक लेते हैं. एंड देन आई वॉन्टेड टू हेल्प entrepreneurs. Then I worked as angel investor and mentored various startups, right? And invested money in them, helped them to grow. तो वो किया 2 साल. And then ICP came to the picture, and ICP said that we have this program in mind, which is ICP Hubs program, and we are looking for somebody जो इंडिया में expansion कर दे हमारे लिए और इंडिया में activation कर दे of all the pillars, like it can be working with regulators, government, investors, entrepreneurs, builders, developers, everyone. So we said why not, and because I was already helping entrepreneurs, right, and having a platform with you and access to that network with you will always help. Definitely. Me and entrepreneurs also that I'm backing. So मैंने कहा this is a good thing. That's how ICP came to the picture, and now I'm working with ICP for last 9-10 months. So Got it. brief about myself. So you have been associated, मतलब आपके लाइफ में ब्लॉकचेन काफ़ी पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था. यू केम टू नो अबाउट बिटकॉइन, बट स्टिल जो अभी की मार्केट है, स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हेन इट कम्स टू ब्लॉकचेन, राइट? हम जनरली कॉलेजेस में बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्ट बिल्डिंग, कि हमें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं. कौन कौन से डोमेन्स हैं, राइट? कोई बोलता है फुल स्टैक डेवलपमेंट इज समथिंग दैट विल गेट योर जॉब फॉर श्योर. फुल स्टैक डेवलपमेंट है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, देन इट कम्स कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग कर लो या साइबर सिक्योरिटी कर लो. फिर एक फील्ड आती है ब्लॉकचेन. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इफ़ समबडी इज़ लुकिंग आउट एट ब्लॉकचेन एज अ फील्ड ऑफ स्टडी या एज अ फील्ड जिसमें वो अपने प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करे, सो हाउ डू यू सी कि इज़ इट समथिंग दैट इज़ रियली गुड, एंड इफ़ येस, वाई?
So I have a generic bias about blockchain, right? Because I'm working in the industry. But at the same time मैं बोलूँगा कि जैसे Gen AI है, it's growing very fast, right? But वो competitive भी हो रहा है. इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना कि एक चीज़ चलती है, जैसे डेटा साइंस है. When I was in my engineering, right? When I was doing my engineering, तो उस टाइम पे डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट वाला बूम आया, राइट और सब लोग आर लैंग्वेज कर रहे हैं, मैंने भी कर ली. बट द प्रॉब्लम इज दैट वॉन्ट लैंड यू अ जॉब, दैट वॉन्ट लैंड यू एन अपॉर्चुनिटी. एक तो यू हैव टू गेट योर इनर कॉलिंग विच इज़ अ क्लीशे लाइन बट इट्स ट्रू. बट एट द सेम टाइम ब्लॉकचेन में देयर आर लाइक एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अपार्ट फ्रॉम जॉब. तो इंडिया में when we think about opportunities हमारे दिमाग में सिर्फ जॉब आती है मतलब, राइट. तो जॉब के अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और बहुत ज़्यादा फ्रीडम है आपके पास टू बिल्ड टू फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वर्किंग इन अ गुड कंपनी तो आपको ESOPs मिलेंगे. बिल्कुल. एंड ESOPs में प्रॉब्लम क्या है कि 3 year लॉक इन है, 3 साल बाद वो लिक्विड होंगे. अगर आप 3 साल पूरे करोगे तभी मिलेंगे. बहुत लोग पहले छोड़ देते हैं. इन Web3 आप जैसे ही कंपनी ज्वाइन करते हो आपको साथ में टोकन मिलने शुरू करते हैं एंड दे आर लिक्विड फ्रॉम day 1. Got it. Right, it's a good thing. Then moonlighting is very common in Web3. So if you are a good developer in Web3, so nobody will. It's not like कि आपको छुप के करना पड़ेगा या फिर अगर किसी को पता चल गया आप moonlighting करते हो तो it's a problem. Because in Web3, बिकॉज इतना डर्थ ऑफ टैलेंट है डेवलपर्स का कि एक डेवलपर 3 प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्ड कर रहा है ऑलरेडी एंड कंपनीज आर फाइन विद इट कि वी हैव अ गुड डेवलपर, ही इज गिविंग 10 hours a week, राइट, एंड वी आर हैप्पी विद इट. वो 3 प्रोजेक्ट्स को दे रहा है 10 घंटे 30 घंटे हफ्ते में काम करें एंड ही इज विड्रॉइंग सैलरी फ्रॉम ऑल 3 कंपनीज एंड 3 companies आर फाइन विद इट. Imagine this case. And on the fourth side, he's building his own company as well. He creates content for himself as well. And because this type of freedom is something that you will get in Web3. तो वो blockchain और Web3 में ये एक opportunity base ज़्यादा बड़ा है, right? At the same time, because अगर आप देखोगे ना डेवलपर अडॉप्शन, तो डेवलपर अडॉप्शन obviously बिटकॉइन के साइकिल्स अब ऊपर गया नीचे गया, we always discuss, right? But we are not talking about finance at this point of time. We are talking about the opportunities in Web3. उसमें क्या है कि बट डेवलपर्स की ग्रोथ है वो हमेशा होती है. डेवलपर्स इन Web3 इकोसिस्टम हमेशा बड़े हैं और मैंने आज तक कोई डेवलपर नहीं मिला जो Web3 से Web2 में वापस गया हो. तो इट मीन्स देयर इज समथिंग गुड अबाउट इन Web3. बट अभी जब हम डर्थ की बात कर रहे हैं, राइट, हमारे पास बहुत सारे Web2 डेवलपर्स हैं बट स्टिल हमारे पास देयर इज अ शॉर्टेज यू कैन से ऑफ Web3 डेवलपर्स. तो इसका मेन रीज़न क्या होगा आपके हिसाब से? इज़ इट lack of awareness? Is it people don't consider Web3 as scalable or something that is a future? So what is the reason behind this dearth? Actually problem क्या है कि Web3 में ना मास हायरिंग कंपनीज नहीं है. बिकॉज अभी तक ऐसा कुछ है नहीं कि इन्फोसिस आएगी और आपके कैंपस से 50 बच्चे लेके चली जाएगी. Web3 में एक स्टार्टअप में बेसिकली 10 बच्चे हैं और वो 10 बच्चे कौन से हैं, वो कौन हायर हो रहे हैं प्राइमरली, जो लोग ऑलरेडी उनके इकोसिस्टम में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई कंटेंट बना रहा है उनके लिए, मतलब दे आर इन टच विद देम एंड ऑब्वियसली दे गिव देम PPO एंड ऑल ऑफ दैट. तो आपको कभी कैंपस प्लेसमेंट में नहीं पता चलेगा, आपको कभी हू हल्ला नहीं होगा, कभी IIT की वो न्यूज़पेपर्स में नहीं आएगा कि 1 crore का पैकेज लग गया. आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेशर्स हु आर गेटिंग लाइक मोर देन 1 crore ऑफ सैलरी इन Web3 बिकॉज वो 3 साल से एक कंपनी के साथ काम कर रहे थे. ये नहीं हो रहा, बट ये हाईलाइट नहीं हो रहा. अब हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज कैंपस तो उस चीज़ को मार्केट करेगा ना जो उनके कैंपस से प्लेसमेंट होगी, ऑफ कैंपस का तो नहीं करेगा. एंड Web3 में तो उनको चाहिए 3 डेवलपर्स टू क्रिएट $1 billion कंपनी. तो वो उस तरह से नहीं हो रहा. और अभी तक ऐसा बैक ऑफिस नहीं है जिससे आपको ये पता चले कि अच्छा यार ये मल्टीपल जैसे इन्फोसिस या TCS जैसी कंपनीज नहीं है, तो उतना शोर नहीं है. बट एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज़ हैं. मतलब स्टूडेंट्स को बेसिकली यही लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है क्योंकि वो हाईलाइट नहीं हो पाती. और जिनको पता है वो कर रहे हैं काम एंड दैट्स व्हाई दे डोंट बैक आउट एंड दैट्स व्हाई दे डोंट मार्केट. मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि स्टूडेंट्स को एक स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है कि उनको कैसे क्या चीज़ स्टार्ट करनी है, क्योंकि ना वी हैव सो मेनी रिसोर्सेज जहाँ से वो फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं. यू कैन सी दैट इन नेटिव लैंग्वेज ऑल्सो, यू कैन सी दैट इन व्हाट्सएवर. बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं. बट एट द सेम टाइम अगर किसी को ब्लॉकचेन सीखना हो या ब्लॉकचेन बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना हो, तो you have been into this industry for so long, so what according to you would be some of the things to get started? तो यार ब्लॉकचेन इज़ अ फास्ट मूविंग स्पेस, बट अगर आपको बेसिक्स समझने हैं एंड यू आर रीडर
तो दो तरह के लोग होते हैं कि जो वीडियो देख के समझते हैं, जो बुक पढ़ के समझते हैं. तो इफ़ यू आर अ रीडर, तो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फिलोसफीज, तो द बुक दैट आई रिकमेंड इज़ के द बिटकॉइन स्टैंडर्ड. इट्स अ ग्रेट रीड, राइट. और अगर आपको टेक्निकल समझना है तो मास्टरिंग बिटकॉइन. तो ये 2 बुक्स हैं अराउंड बिटकॉइन विच विल गिव यू द ग्रेट आइडिया अबाउट मास्टरिंग बिटकॉइन. टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ बिटकॉइन समझा देगी, द बिटकॉइन स्टैंडर्ड आपको फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ बिटकॉइन से, दोनों समझने ज़रूरी है. तो ये बुक्स वाला पार्ट हो गया. सेकेंडली, अगर आप बुक्स नहीं समझना चाहते, आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहते हो, तो आप हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो. इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. वी वर डिस्कसिंग दिस ऑफ कैमरा एज वेल, बिकॉज उसमें क्या है कि जनरली इन वेब3 हैकाथॉन्स होता है कि कंपनीज के CTOs आते हैं, खुद सीनियर एम्प्लॉयज़ आते हैं जो आपको पूरे मास्टर क्लासेस देंगे, आपको बूट कैम्प देंगे, आपको एक एक चीज़ समझाएंगे. देन देयर विल बी ऑफिस आवर्स जो आपके डाउट्स एंड एवरीथिंग को देंगे. जब आप डिप्लॉयमेंट करोगे तो आपकी गैस फी तक वो कंपनीज पे करेंगे. एंड देयर आर लाइक गुड कैश प्राइजेस इन द हैकाथॉन एज वेल. तो हैकाथॉन बहुत अच्छा मीडियम है, बिकॉज वो आपको सिखाएंगे भी, एक गेमिफिकेशन भी हो गया, एंड में कि कैश प्राइज भी हो गया, या फिर एक इंटर्नशिप भी आपको फॉर श्योर मिल जाती है. जो हैकाथॉन विनर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप्स पक्का मिल जाती है. तो हैकाथॉन्स आर अ ग्रेट टूल टू स्टार्ट योर वेब3 जर्नी इन माय पर्सनल ओपिनियन. नहीं, जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो आई हैव बीन इनटू दिस स्पेस, काफ़ी सारे हैकाथॉन्स वगैरह, आई डू कीप ऑन शेयरिंग विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स दे कम अप, दे रजिस्टर जस्ट इन फोमो कि यार वो कर रहा है तो आई शुड ऑल्सो गो एड एंड डू इट. तो कहीं ना कहीं फोमो के कारण बच्चे ब्लॉकचेन में जा रहे हैं. द मोटिवेशन, द पुल, द पुश इज़ नॉट देयर, क्योंकि इंडियन मार्केट इज़ मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स कि यार मेरे को नौकरी मिलनी चाहिए. पीपल थिंक कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, आई शुड गेट एन एंड रिजल्ट, कि आई शुड गेट अ जॉब, राइट. सो दैट्स फेयर इनफ. तो अगर हम Web3 मार्केट में या ब्लॉकचेन मार्केट में, विल टॉक अबाउट जॉब सिनेरियो. अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया मार्केट की बात करें, तो अगर एक फ्रेशर एक Web3 या ब्लॉकचेन कंपनी में जॉब ढूंढना चाहता है, व्हाट शुड बी हिज और हर रोड मैप, या फिर एक एक्सपीरियंस गाय जिसने कंसिडरेबल काम कर रखा है ऑलरेडी, उसको अगर जॉब चाहिए तो वो क्या कर सकता है? राइट. सो फॉर अ फ्रेशर मैं आपको अगेन यही बोलूँगा कि द जर्नी इसके Web3 में ना, वो वाली फ्रेशर्स के लिए जॉब्स बहुत कम है कि जहाँ पर यू वॉक इन फॉर एन इंटरव्यू और आपको जॉब मिले. बिकॉज अगेन मैंने आपको बोला छोटी टीम्स हैं, बट द सैलरीज आर इनसेन, द सैलरीज आर वेरी लिक्रेटिव. तो होता क्या है कि एज अ फ्रेशर आप किसी के साथ इंटर्नशिप करो, या जो मैंने हैकाथॉन वाला रूट किया वो आप करो, विद इन 6 to 8 months, if you are good, and I believe Indian students are already good, right? So you will land a job for sure. Because again, छोटी टीम्स हैं and they want to make it efficient. और बहुत सारे startups हैं that are popping right, left and center. So working with them as intern, right, will give you exposure, will give you good stipend, and will give you enough learning, and obviously you will get a good PPU at the end of it. But you have to believe in the ecosystem. तो फ्रॉम वेयर डू स्टूडेंट्स कम टू नो कि यार कौन कौन सी कंपनीज ब्लॉकचेन में आती हैं, एंड हाउ शुड दे अप्रोच देम? राइट, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन. तो इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप ट्विटर पर एक्टिव रहिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कौन सी कंपनी की एक्टिव हो रही है, कौन सी कंपनी का क्या, क्योंकि हर कंपनी कुछ ना कुछ प्रोग्राम लॉन्च करती ही रहती है. जनरली स्टूडेंट्स ना ऐसे प्लेटफॉर्म से जाके कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे हम भी बोल देते हैं कि लिंक्डइन पे जाओ एंड यू विल फाइंड समथिंग, ट्विटर पे जाओ यू विल फाइंड समथिंग, बट कुछ ऐसा कंसिडरेबल नहीं है यार जिसमें हम टू क्रूज फेयर विल हेल्प. हाँ, तो दैट इज़ वन, राइट. बट स्टिल एक प्रॉब्लम आती है, लाइक वी टॉक अबाउट, आजकल बहुत ज़्यादा हाइप चलती है रिमोट जॉब्स की, क्या रिमोट जॉब्स में यू विल गेट ऐसे करोड़ों का सैलरी, राइट. सिमिलरली अगर किसी, मतलब वी हैव टॉक्ड अबाउट इंडिया मार्केट में ही कैन एक्सप्लोर एंड डू स्टफ. सिमिलरली अगर रिमोट जॉब चाहिए तो उसका पाथवे सिमिलर है या उसका पाथवे सेम है? बिकॉज Web3 में द ब्यूटीफुल थिंग इज कि कोविड से पहले भी सब कुछ रिमोट ही चल रहा था. एंड Web3 में कॉन्सेप्ट ही, आई वॉज इंक्यूबेटिंग अ स्टार्टअप एंड सेड कि सर ठीक है, आप फंडिंग दे रहे हो, आप मेंटोरशिप दे रहे हो, आप हमें टेक कंपनी से कनेक्ट करा रहे हो, इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करा रहे हो, मार्केटिंग करके दोगे, सब कुछ सही है, वी आर हैप्पी. क्या एक ऑफिस स्पेस मिल सकती है? मैंने कहा भाई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. Web3 में कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसका, ऑफिस स्पेसेस का. तो आप बाय डिफ़ॉल्ट एवरी स्टार्टअप विल टेल यू कि वर्क फ्रॉम होम, बट ऑफ साइट होगा. एंड ऑफ साइट कहाँ होगा? दुबई में होगा, सिंगापुर में होगा, जहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पे होगा. तो इट्स लाइक अ फ्री वेकेशन फॉर यू एवरी 2 months. राइट. सो इट्स वेरी गुड टू वर्क विद इट. आप जाओ गोवा जाए काम करो, मस्त है. तो ज़रूरत ही नहीं है. एंड वर्क फ्रॉम होम कल्चर इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन Web3 स्पेस, विच इज़ वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर वन, राइट. एंड यू विल गेट द US सैलरीज सिटिंग इन इंडिया with off-site vacation every 2 months paid by the company. Got it. So काफ़ी ज़्यादा lucrative चीज़ है. बट अगर एक benchmark set करना हो, what is a good salary in Web3? It depends, right? अगर depends again,
कंपेयर टू वेब 2 वही होएगा कि ऑन योर स्किल सेट के आपने कितना काम किया है. जैसे कि फॉर समबडी जो 3 सालों से किसी ना किसी, बिकॉज अगर इफ़ यू स्टार्ट बाय फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज और सेकंड ईयर ऑफ योर कॉलेज, आप 2-3 सालों में अलग अलग वेब 3 कंपनी से इंटर्नशिप कर रहे हो, तो बाय 4th ईयर यू विल ईजिली लैंड क्लोज टू 50 लाख रुपीज़ ऑफ INR पर एनम पैकेज, राइट. Got it. बट द मीन वुड बी कि अगर आपने जस्ट स्टार्ट करना है या जस्ट आउट ऑफ कॉलेज आपने फाइनल ईयर में ही सोचा, तब भी यू कैन ईजिली लैंड 12 to 15 लाख LPA पैकेज कंसिडरेबली. एंड इफ़ यू आर वेरी गुड, इफ़ यू आर इनटू डेवलपमेंट या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली गुड हो गए, सो यू कैन ईजिली आई फॉर समथिंग मोर देन 1 crore, राइट. मोर देन $150K or $200K is the standard that a blockchain developer gets if you are a senior blockchain developer. And for a senior blockchain developer, the good thing is you can start in first year of your college. By 4th year of your college, if you have like 100 repos on your GitHub and you have developed enough smart contracts, then you can land these kind of jobs for sure. Got it. And हम ट्रेंड्स की बात करते हैं ना इसी के साथ, कि किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का ट्रेंड है एंड इट्स अपवर्ड्स, तो हर कोई उस ट्रेंड पे जंप ऑन करके ही वांट्स टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट. सिमिलरली हमने ब्लॉकचेन का भी वेव देखा, वी सॉ इट ग्रोइंग, देन इट केम डाउन, वी सॉ इट ग्रोइंग अगेन. तो ये ट्रेंड के ऊपर जंप करना, इज़ इट सिक्योर फॉर स्टूडेंट्स? मतलब उनके दिमाग में सिक्योरिटी वाली चीज़ आती है कि इफ़ आई स्पेंड लेट्स से 1 साल 1.5 साल 2 साल मैंने इस पर स्पेंड कर दिए एंड उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि दिस इज समथिंग दैट इज़ नॉट वर्किंग, फिर आई विल फील दैट आई एम एट पॉइंट ज़ीरो. तो उस स्टूडेंट के लिए क्या एडवाइस होगी? सो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप ट्रेंड किस चीज़ का देख रहे हो. इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस. आप ट्रेंड देख रहे हो प्राइस का, कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऑल टाइम हाई पे गया, फिर नीचे आया, राइट. बट आपको प्राइस से तो कोरिलेशन ही नहीं है. यू लुकिंग फॉर अ करियर इन Web3. तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि डेवलपर्स की सैलरीज ऊपर जा रही हैं या नहीं जा रही हैं. 2019 से लेके 2023 तक एवरी ईयर ब्लिंक्डइन एक रिपोर्ट निकालता है हर साल कि बेस्ट जॉब्स इन द, तो उसमें ब्लॉकचेन डेवलपर टॉप पे रह रहा है, राइट. तो इसका मतलब तो ग्रो कर रहा है. अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि डेवलपर्स इन द इकोसिस्टम, इट्स ग्रोइंग सिंस 2011. हर साल ग्रो किया एंड ग्रोथ परसेंटेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एवरी ईयर ऑन ईयर. कभी ड्रॉप नहीं आया डेवलपर्स में. तो इसका मतलब क्या है कि जो पुराने डेवलपर्स जब एक बार इकोसिस्टम में आते हैं, दे डोंट लीव द इकोसिस्टम, एंड नए डेवलपर्स हर साल आते जा रहे हैं. दैट इज मीन. गिटहब रेपोज की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं. बैक इन 2014 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो नंबर वॉज क्लोज टू फ्यू हंड्रेड्स, राइट. नाउ इट्स मोर देन 50,000. तो 50,000 अगर हर एक में आप 10 का भी टीम साइज पकड़ो तो you have enough jobs. And the number is growing exponentially. We as Cruisefare plan to incubate 100 startups by end of this year. 100 startups. Nice. With funding, we will provide them funding, mentorship and everything. Right? तो आप सोचो 100 स्टार्टअप तो सिर्फ हम कर रहे हैं इंक्यूबेट, पूरी दुनिया में कितने हो रहे होंगे? Agreed. और इंडिया में ही कितने हो रहे होंगे? तो ये 100 स्टार्टअप्स जब हम इंक्यूबेट करेंगे, इनको फंडिंग देंगे, तो क्या ये टीम नहीं हायर करेंगे? फॉर श्योर करेंगे. तो जॉब्स विल बी देयर, राइट. यू जस्ट हैव टू कैच इट, यू जस्ट हैव टू कैश इन. एंड अगर किसी को बहुत ईजी लैंग्वेज में यूज़ कैसे समझाने हो ब्लॉकचेन के, राइट, एंड विद एक्सेप्टेंस कि इज गवर्नमेंट एक्सेप्टिंग ब्लॉकचेन, या इज आर गवर्नमेंट एंटिटीज एक्सेप्टिंग ब्लॉकचेन, या फिर आर प्राइवेट कंपनीज एक्सेप्टिंग ब्लॉकचेन, या जैसे हम बिग टेक कंपनीज की बात करते हैं, व्हाट इज देयर स्टैंड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी. तो उसके इफ यू हैव सम एग्जांपल्स और समथिंग. एवरीवन इज प्रो. फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट रिसेंटली लॉन्च्ड देयर NFTs, राइट, के जो भी परचेज करेगा दे विल बी सर्टेन NFTs. गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने अपने कास्ट सर्टिफिकेट्स, बिकॉज कास्ट सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा टेम्परिंग होती है, बिकॉज लोग रिजर्वेशन एंड एवरीथिंग के लिए यूज़ करते हैं, उन्होंने वो ब्लॉकचेन पे इशू किए. एंड हमने गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के साथ काम किया, जहाँ पे उन्होंने माता चिंतपूर्णी जी के वर्चुअल दर्शन किए, एंड वी डिलीवर दैट प्रोजेक्ट फॉर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल. गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने अपने पुलिस रिकॉर्ड्स, बिकॉज पुलिस रिकॉर्ड्स के साथ भी टेम्परिंग होती है, वो की. IITs अपनी डिग्रीज ब्लॉकचेन पे दे रहे हैं. एंड आई कैन गो सो ऑन एंड यू नो अंटिल मिडनाइट, जहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ. तो ऑब्वियसली अडॉप्शन इज देयर बोथ ऑन द कॉर्पोरेट एंड द गवर्नमेंट लेवल. सबसे बड़ी बात, इंडिया ने CBDCs निकाले हैं, विच इज़ लाइक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, राइट. सो CBDCs अभी बहुत फाइनेंस वर्ल्ड में बात हो रही है. दे आर बेस्ड आउट ऑन ब्लॉकचेन, राइट. तो ऑब्वियसली ब्लॉकचेन की अडॉप्शन रेट बहुत ज़्यादा है. और लेट्स से अगर हम cryptocurrency, we talk about cryptocurrency, we talk about blockchain, we talk about Web3, we talk about NFTs, right? तो ये terms ना students mix it up.
they don't understand use cases, they don't understand what is the standpoint in fintech, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हाउ कैन वी एज अ कम्युनिटी हेल्प कि उसकी अवेयरनेस एंड इट शुड गो इन द राइट वे. तो क्या कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स एज स्टूडेंट्स कैन बी टेकन अप जो ऑलरेडी अवेयर हैं? या अगर एज अ स्टूडेंट आप ऑलरेडी अवेयर हो एंड यू वांट टू हेल्प योर कम्युनिटी, देन फॉर्म अ डाओ और क्रिएट कंटेंट, राइट, एंड दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी जिससे आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं एंड आप लोगों की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं. तो इससे बेटर और कुछ है ही नहीं. अभी जैसे हमने कंटेंट की बात की, राइट, तो हम ऐसे फ्री रिसोर्सेज की बात करते हैं. कौन कौन से ऐसे फ्री रिसोर्सेज हैं, मतलब इफ़ यू हैव लाइक यू नो सम ऑफ द रिसोर्सेज जो हेल्पफुल होंगे यूजर्स के लिए, विल आई ट्राई टू पिन देम अप इन द कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन, जाके स्टूडेंट्स व्यू कर सकते हैं एंड दे कैन ऑल्सो गेट स्टार्टेड विद देयर जर्नी. कुछ ऐसे रिसोर्सेज. सो फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी प्रोजेक्ट, मान लो आपको ICP पसंद आ जाता है, राइट, तो आप ICP का जाओ, उनका वाइट पेपर डाउनलोड करो एंड रीड इट. वाइट पेपर्स किसी भी टेक फाउंडर के लिए जो भी Web3 में काम कर रहे हैं उनके लिए सबसे क्रूशियल पार्ट है, बिकॉज दैट्स देयर पिच. तो उसमें अपना पूरा दिमाग, उन्होंने पूरा एफर्ट लगाया होता है. आप सोचो मेरे को 10 पेज लिखने और मैंने उसमें अपना, बिकॉज माई लाइफ डिपेंड्स अपॉन इट, राइट, दैट्स माई एंटरप्राइज इन द वेरी बिगनिंग. तो मैं उसके ऊपर कितना एफर्ट लगाऊंगा. किसी स्मार्ट बंदे ने इतना एफर्ट लगा के एक डॉक्यूमेंट लिखा है 10 पेज का सिर्फ. आपके लिए उससे ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में क्या है. तो हर एक प्रोजेक्ट का एक वाइट पेपर होता है जो आपको उनकी वेबसाइट्स पे इजीली मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल आप लिखो इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल वाइट पेपर, यू विल गेट फ्यू लिंक्स, रीड देम. आपको इथीरियम पसंद है, इथीरियम वाइट पेपर, बिटकॉइन वाइट पेपर, रीड. बुक्स तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, है ना. तो मास्टरिंग बिटकॉइन एंड द बिटकॉइन स्टैंडर्ड, ये दोनों बुक्स अच्छे हैं. तो अगेन दीज आर गुड मीडियम्स. सो इफ आई एंड सेकेंडली अगर आपके डाउट्स हैं तो वही रन अ टेलीग्राम कम्युनिटी, आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हो, cruisefare.in, एंड ऑब्वियसली वहाँ पर वी हैव अ चैनल जहाँ पे टेक क्वेरीज हैं, कुछ और क्वेरीज हैं, पीपल कैन कम एंड आस्क ऑल दोज क्वेरीज. एंड वहाँ पे जॉब्स पोर्टल भी है जहाँ पे हम जॉब्स डालते हैं, या अगर किसी को चाहिए तो वो डाल सकते हैं, एंड देन यू कैन मैच विद सर. Got it. And what is the next big thing for you, particularly when you talk about blockchain and this entire space? The next big thing that I am eyeing and I'm working towards is adoption. मुझे लगता है कि this rally is all about adoption. With Bitcoin ETFs, US में स्टॉक मार्केट में बिटकॉइन खरीद सकते हो आप. तो now with this I believe कि adoption will be the big thing. और मेरे को लगता है इंडिया कैन लीड दिस जर्नी. कि इंडिया से अडॉप्शन आएगी बहुत ज़्यादा. इंडिया से जैसे Web2 में भी एकदम से बहुत सारे डेवलपर्स आए थे, वो दैट्स वर्क. बट इस बार मुझे लगता है कि हमारे यहाँ से एंटरप्रेन्योर्स भी आएंगे, बिल्डर्स भी आएंगे, एंड डेवलपर्स ऑब्वियसली आएंगे. आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल कन्वर्सेशन थी. वी हैड talked on multiple things. Any final piece of advice that you would have for students specifically who want to jump onto blockchain with respect to this particular market and going forward? Any final piece of advice? So my final piece of advice is don't think too much. As a student, you have liberty of time, resources, and age is on your side. So take some risk, right? There's no harm in learning. तो आप जाओ, कंपनी से कनेक्ट करो, मुझसे कनेक्ट करो, किसी और से कनेक्ट करो, बिकॉज द इकोसिस्टम इज़ वेरी वेलकमिंग, राइट. Just get in touch with them, ask for opportunities, ask for learning opportunities, resources. They will help you out. And once you have learned, once you have touched the ecosystem, उसके बाद डिसाइड करो ना यार whether this is for me or not, whether I want to work in this or not. But outside से yes का भी बनाना गलत है कि मेरे को करना ही करना है इसमें काम, नो का भी बनाना गलत है कि मुझे करना ही नहीं है. तो यू हैव टू बी वेरी श्रूड कि पब्लिक सेंटिमेंट से मत फील करो. You have to work from you internally. Yeah, exactly. So you have to work for it. So yeah. I think काफ़ी इंसाइटफुल था. बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे फॉर यू पीपल. अगर तुम ब्लॉकचेन स्पेस में एंटर करना चाहते हो, उसको एक करियर ऑप्शन की तरह देखना चाहते हो, या फिर सिंपली एक्सप्लोर करना चाहते हो एंड देन यू वांट टू जंप ऑन इट, thank you so much Bandul for coming here, sharing your journey. It was lovely talking to you. I'll link some of the resources that we discussed, some of the YouTube channels or some of the books that he told about. We'll link them up in the description for all of you. If you have any more doubts, do let us know in the comments below. We'll be more than happy to answer. I'll reach out to Bandul for any of the doubts. Make sure you do ping and you can connect with Bandul also. Thank you so much once again. See you in some other video. Till then, all the best. Good luck and